Hello, welcome to all. Today we have another lecture on design of rotor. In a previous lecture we study about design of length of air gap. Then we study about design of number of rotor slot. Now in this lecture we see the design of rotor bars and rotor slot, and then we study about design of end ring. So first we see the design of rotor bars and slot. So for design of rotor bars and slot, first we have to understand a rotor bar current. Rotor bar current. Now a rotor bar current, find out the rotor bar current. We have an equation for the rotor MMF. As we know that a rotor MMF which is equal to 85% of stator MMF. A rotor MMF which is equal to 85% of stator MMF. So here we know that if rotor MMF is 85% of stator MMF, and rotor MMF here we introduce like AB, current IB for rotor current. Now SR by 6. Here is the rotor slot, and divide by per phase and per turn. We find the value of rotor number of turns. So IB into SR by 6, which is equal to 85% of stator MMF. Now stator MMF which is equal to stator current into stator number of turn. So our current IS and TS. So here IS which is the stator current and TS which is the number of stator turns. Here SR which is a rotor slot. So current in a rotor bar which is IB which is equal to 85% of 6 into IS into TS by SR. So here is the equation for rotor bar current. IB which is equal to 85% 6 into IS into TS by SR. Now we use this equation to find out the rotor bar area. So here we see that now area of rotor bar. So first of all, generally in performance of induction motor mainly depend on our rotor bar resistance. So here if resistance of this rotor bar are increased, or we can say that we choose a value high resistance. So if value of resistance is high, so advantage is that our starting torque we take also high. So we get high starting torque motor with high resistance. But from disadvantages, we have some disadvantages for high resistance is our I square R losses. So when the value of resistance increase, which means that I square R losses increase, and our efficiency which is equal to our output upon losses plus output. We can say input as in losses plus output. So efficiency which inversely proportional to our input, and we can say is inversely proportional to our losses. So when here I square R losses are increased, at that time our efficiency will decrease. So I square R losses increase and efficiency decrease. But with high resistance we get high starting torque. So here is some advantages and disadvantages of high resistance. So now we have to choose a value, our rotor resistance between high starting torque and efficiency.
So it is desirable to compromise between high resistance rotor, which gives good starting torque, and low resistance rotor, and which gives a high value of efficiency under running condition. So our current density, which is equal to our current upon area. So now if we increase the current density of conductor, which means that area decreasing because inversely proportional, so if delta increase, at that time area will decrease. If a rotor designed with high value of current density, which means that high starting torque and efficiency is lower. So the rotor resistance, which is the sum of our rotor resistance, which is the sum of bar resistance plus end ring resistance. So the cross section of the bar and end ring must be such select that the proper value of rotor resistance, the value of rotor resistance which meet the both requirement of starting torque as well as efficiency. So for that purpose we have to find out an area of rotor bar AB with the help of current IB, which we described in our this lecture, divided by our current density delta B. So we find out the area of rotor bar with this equation, and which is equal to IB by delta B. Now we discussing about shape of rotor slot. Generally in induction motor there is a two types of shape for a rotor slot we are used, a closed type and semi enclosed type. So for closed type, a circular closed and rectangular type closed slot, wherein semi enclosed type also there is a circular and rectangular type semi enclosed slot we used. A closed type slot, we know that in our magnetic circuit we study that in a closed type slot there is a value of kg which is equal to 1, which means that our gap construction factor is 1. Construction factor which is 1, which means that reluctance of air gap is reduced, or we can say that the value of reluctance for this closed type slot induction motor which is low. So the reluctance of air gap will reduce, so that we know that MMF which is equal to flux into reluctance. Here MMF we can say that current into turns, or called IT, MMF which is equal to current into number of turns. So flux into S, which means that our current I is proportional to reluctance. Here this current which is our magnetizing current IM, and reluctance which is S. So magnetizing current are proportional to reluctance, which means that if reluctance increase, magnetizing current increase. If reluctance decrease, which means that magnetizing current decrease. Now if magnetizing current decrease, what happen? With the magnetizing current, our no load current also increase or decrease. So magnetizing current decrease, which means that no load current decrease, and no load current decrease, which means that an angle between current and voltage, a stator current and voltage will decrease. So value of angle between this voltage and stator current decrease, which means that our power factor cos phi will increase. So in a closed slot the value of air gap is reduced, value of air gap reluctance will reduce, which means that a magnetizing current reduce, and magnetizing current reduce, the power factor of the motor will improve. In our closed type slot, the leakage reactance will be higher.
So if the leakage reactance higher, which means that starting torque, the current value will be high. So limit this starting current by the leakage reactance. So the value of leakage reactance higher, reduce the starting current, limit the starting current. So in the machine where DOL stator are used. Now due to closed slot, the reluctance value will be reduced, which means that tooth pulsation losses are reduced. And if the tooth pulsation losses are reduced, the operation of the motor are very quieter. Now rectangular shaped bar and slot we generally prefer instead of circular bar or slot, because here we see that semi-enclosed slot with rectangular and closed slot with rectangular shape, and also closed slot with circular shape and semi-enclosed slot with circular shape. So we use a rectangular shape instead of closed shape of rotor bar. Why? Because in rectangular bars the higher leakage reactance, which means that during the starting a force of most of the current through the top of the bar, and which increase the rotor resistance at starting and improve the starting torque. So this deep slot however gives an increased leakage reactance and a high flux density at the root of the teeth. ओके यहाँ पर हमने जो रोटर के जो बार है उसकी डिजाइन के बारे में हमने सब कुछ सीखा। हमने जाना कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर हम हायर लेते हैं तो स्टार्टिंग करंट हमें ज़्यादा मिलता है, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लो रखते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ज़्यादा रखते हैं तो हमें लॉसेस जो है ज़्यादा मिलता है, यानी कि एफिशिएंसी घट जाती है। तो या तो हम स्टार्टिंग करंट जो हमारा है वो हायर रख सकते हैं या एफिशिएंसी वो हायर रख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है एक्चुअल में दो चीज़ों पर डिपेंड होगी रोटर के, एक तो रोटर बार और दूसरा जो है वो एंड रिंग। हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ एंड रिंग, और एंड रिंग की डिज़ाइन पहले देखेंगे। तो पहले तो एंड रिंग क्या है कि जो रोटर बार है हमारा उसको दोनों साइड से हम कनेक्ट करते हैं, जिसको हम एंड रिंग करते हैं, यानी कि उसको दोनों साइड से हम क्लोज सर्किट बनाते हैं। तो अब ये फिगर में हम देखते हैं कि एंड रिंग जो है उसमें करंट कैसे फ्लो होता है। तो जब हम स्टेटर में जब सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देने के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके कारण वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके कारण जो रोटर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, साइनसॉइडली फ्लो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस रोटर के बार के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करेगा, और जो करंट प्रोड्यूस करेगा कहते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो रोटर बार में करंट फ्लो होगा, वो हाफ ऑफ द रोटर बार में अलग डायरेक्शन में फ्लो होगा और हाफ ऑफ द रोटर बार में अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट जो है वो करंट साइनसॉइडल होगा, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है वो साइनसॉइडल है, उसके कारण ही उसके प्रोपोर्शनली हमारा ईएमएफ करंट जो है ईएमएफ के प्रोपोर्शनली प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी हमें साइनसॉइडल मिलेगा। यानी कि जो एक साइमल्टेनियसली जो भी बार है, यानी कि एक एक बार में हमें मैक्सिमम वैल्यू करंट की मिलेगी। और जो एंड रिंग है उसका जो कनेक्शन है वो हमने रोटर बार के साथ किया हुआ है, यानी एंड रिंग में भी हमें करंट की वैल्यू जो है वो साइनसॉइडल मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करंट यहाँ पर एंड रिंग में फ्लो हो रहा है और रोटर बार में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो टोटल रोटर बार जो है उसका हाफ ऑफ द करंट वन डायरेक्शन में होगा और हाफ ऑफ द करंट जो है वो अलग डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो एंड रिंग है वहाँ पर हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो रोटर बार के हाफ जो रोटर बार है उसके कारण हमें एंड रिंग करंट की वैल्यू मिलेगी। तो जो रोटर बार में जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू हमें जहाँ पर मैक्सिमम मिलती है वहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो रोटर बार जो करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, तो उसी पर हमें एंड रिंग की वैल्यू जो करंट की वैल्यू है वो 0 मिलेगी। और जहाँ पर एंड रिंग की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है वहाँ पर हमें रोटर बार में जो करंट है उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एंड रिंग में है वो कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि हम हाफ ऑफ द रोटर बार लेंगे और जो बार में ईच बार में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम हाफ ऑफ द रोटर बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो एंड रिंग में से जो करंट मिल रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एंड रिंग, तो करंट की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हाफ ऑफ द बार लेना, मतलब कि बार्स पर पोल हाफ लेना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, बार पर पोल डिवाइड बाय 2, और जो एंड रिंग करंट है उसको हम आई ई से डिवाइड करते हैं और मैक्सिमम करंट लेते हैं, इसलिए आई ई मैक्सिमम। नाउ बार्स पर पोल बाय 2, उसको हम करंट पर बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक जो बार्स है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट पर बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम सभी बार जो है कंडक्टर के उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल करंट मिलेगा, उसका हाफ लेना है उसको, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो एंड रिंग है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब जो नंबर ऑफ बार पर पोल है, यानी नंबर ऑफ बार कितने हम लेंगे, जितने नंबर ऑफ स्लॉट होंगे उतने नंबर ऑफ बार लेंगे, तो यानी नंबर ऑफ स्लॉट एस आर, यानी जो रोटर में टोटल नंबर ऑफ स्लॉट है वो डिवाइडेड पर पोल यानी पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू करंट पर बार। तो करंट पर बार जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, और बार करंट की वैल्यू हम आई बी मैक्स ले लेते हैं। तो ये जो बार में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा एस आर बाय 2p इंटू आई बी मैक्स। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, हमने पहले बताया कि जो आई बी मैक्सिमम है वो भी साइनसोइडल है, यानी कि बार में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी साइनसोइडल है, और जो एंड रिंग में से करंट फ्लो हो रहा है वो भी साइनसोइडल है। यानी बार में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो साइनसोइडल है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ बार है उस टोटल नंबर ऑफ बार में एक ही समय पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कोई एक बार में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उस और जो अदर बार है उसमें साइन लॉ के हिसाब से वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। तो टोटल वैल्यू जो हमें एन रिंग की लेनी है वो वैल्यू हम कितनी लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे करंट की। सो एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा हमें जो मैक्सिमम करंट मिला है उसको हम 2/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी जो वैल्यू है उसको हम 2/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू हमें मिल गई है वो है हमारी मैक्सिमम करंट की, एवरेज वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर जो हमारा आई बी मैक्स है वो आई बी मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसमें से हमें अगर हम आर एम एस वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2/π इंटू एस आर बाई 2p √2 आई बी मैक्स में से, यानी कि आई बी मैक्स बाई √2 बराबर आई बी। सो आई बी मैक्स बराबर आई बी इंटू √2 होगा, तो आई बी इंटू √2 यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब ये इक्वेशन जो है हमें आई ई मैक्स का मिला है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है जो करंट बार में से फ्लो होगी। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड रिंग की उसकी हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू हमें निकालनी हो तो उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आई ई आर एम एस विच इज इक्वल टू आई ई मैक्स डिवाइड बाई √2। तो अगर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी आई आर एम एस की।
तो IE/RMS की वैल्यू हमें मिलेगी 1/√2 इंटू 2/पाई इंटू SR/2P इंटू √2 IB। सो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, SR/πP इंटू IB एम्पियर। तो यहाँ पर जो IB है वो भी RMS वैल्यू में होगा और IE है वो भी RMS वैल्यू में होगा, तो उसको हम IE डिनोट कर देंगे। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो IE इज इक्वल टू SR/πP/IB। अब हम एरिया ऑफ एन रिंग फाइंड करेंगे। तो पहले तो एरिया ऑफ एन रिंग फाइंड करने के लिए अब जिस तरह हमने रोटर बार्स की बात की थी, जो रोटर बार्स की हम डिज़ाइन करते हैं, तो रोटर बार जो है उसके रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग करंट है उसकी लिमिट हम कहाँ तक रख सकते हैं या फिर हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी। उसी तरह जो एन रिंग है उसकी डिज़ाइन भी हम उसके बेस के ऊपर ही करेंगे। जो रेजिस्टेंस वैल्यू हमें लेनी है उसके हिसाब से हम उसकी डिज़ाइन करेंगे, यानी कि उसकी जो एन रिंग है उसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे। यहाँ पर जो एन रिंग है उसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू हम चूज करेंगे वो 5 to 8 एम्पियर/mm² होगी। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हम 5 to 8 एम्पियर तक लेंगे। अब हम एरिया फाइंड करेंगे एन रिंग का। तो पहले तो यहाँ पर हमारी जो एन रिंग है वो एन रिंग के अंदर उसकी जो डेप्थ होगी, तो डेप्थ कितनी होगी, ये इतनी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें एन रिंग की डेप्थ मिलेगी। और यहाँ पर जो जितनी जो उसकी थिकनेस होगी, थिकनेस कितनी होगी, TE एन रिंग की थिकनेस, और ये जो है वो एन रिंग की डेप्थ। ये जो थिकनेस और डेप्थ है उससे हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा, AE TE इंटू DE, यानी थिकनेस ऑफ द एन रिंग इंटू डेप्थ ऑफ द एन रिंग। तो उससे हम हमारा एरिया ऑफ एन रिंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो एरिया ऑफ एन रिंग है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे पास करंट डेंसिटी का इक्वेशन है, करंट डेंसिटी डेल्टा विच इज इक्वल टू IE/IA, IE/A, यानी यहाँ पर से भी हम एरिया ऑफ एन रिंग निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ एन रिंग इज इक्वल टू IE/ΔE। और IE की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की थी, वो है SR/IB/πP इंटू 1/ΔE। तो जो ये इक्वेशन है उसके ऊपर से भी हम हमारा जो एरिया ऑफ एन रिंग है उसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन के ऊपर से हमें एरिया ऑफ एन रिंग की वैल्यू मिल जाती है, उसके हिसाब से हम जो एन रिंग है उसकी डेप्थ और थिकनेस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये फाइंड करने के लिए जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो हम 5 to 8 एम्पियर/mm² लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्क्विरल केज रोटर है उसकी डिज़ाइन देखी। उसके अंदर हमने लेंथ ऑफ एयर गैप पहले फाइंड किया। उसके बाद जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें हम नंबर ऑफ स्लॉट कितने लेते हैं वो देखे। जो रोटर है उसके अंदर हार्मोनिक इफेक्ट क्या होगी, स्टेटर के अंदर हार्मोनिक इफेक्ट क्या होगी, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया वो सब हमने देखा। फिर बाद में हमने रोटर बार्स की डिज़ाइन देखी। फिर नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो स्लॉट का शेप जो है वो कैसा होगा, और जो रोटर स्लॉट है उसका इंसुलेशन जो है वो कैसा होगा। बाद में हमने जो एन रिंग है उसकी डिज़ाइन देखी। तो हमने जो नंबर ऑफ पैरामीटर जो रोटर डिज़ाइन के रिलेटेड थे वो सब हमने देखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रोटर डिज़ाइन है उसके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। थैंक यू।